से 5 दिन के अंदर आपका प्रीलिम से पहले रिवीजन हो जानी चाहिए, इसलिए वन सब्जेक्ट वन सोर्स, दैट इज इट। ये सवाल अक्सर बच्चों को तंग करते हैं कि इतना वास्ट और एम्बिगुअस कंटेंट है और हमको ये भी नहीं पता है जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो काफ़ी है। दिस इज़ द ट्रुथ। इवन इन माई फर्स्ट प्रीलिम्स आई कैन टेल यू दैट मैंने इतनी दफ़े चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैंने एज इट इज़ बुक में पढ़े थे, बट एग्जाम में जाकर आई गॉट कन्फ्यूज इन 2 ऑप्शंस। हिस्ट्री इज द ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ऑल कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर रीडिंग, से इन पॉलिटी, से इन एथिक्स, इन एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हिस्ट्री से शुरू होते हैं। एंड दिस इज द मेजर चैलेंज वाई सब कुछ पढ़ने के बाद भी बच्चे मेंस में आंसर नहीं लिख पाते हैं। वाई? बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। वेलकम यू ऑल टू योर वेबिनार इन विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री एट सारथी IAS. माय नेम इज जसलीन कौर and I'll be teaching you history in the foundation batch as well as the PRP batch. Okay, let me also inform you about my credentials first before we even begin today's session. I have a dual masters, one in history, second in liberal arts. Okay, that's one. And secondly, I have been through all the stages of this examination. I have been through, I've cleared prelims thrice, and I've also given means this year. I've been through interview in 2023, and I'm gonna teach you, history in the foundation batch. So that is about me. Now let us talk about the session that we're going to take in today's session, how it's going to go. See, we will have about 40-45 minutes of session. Okay, not too long, not too short, just enough to keep you hooked. We would divide the session into 2 parts. In the first part of the session, I'm going to present a PPT to you. Along with that, I'm going to explain you how to manage history for UPSC CSE examination, both for prelims as well as mains. So we're going to have a little strategic idea about as to how to go about the subject. So first 30 minutes, I would request you all to kindly listen carefully, hold your horses, because I'm going to come to you in the second half of the session, wherein I will myself invite your questions, and I would make sure that I'm able to answer most of your questions. But for that, you have to listen to me first. Okay, so let us begin. How to manage history for prelims and mains. So I've written this. Yeah, I will make sure that I cater to everyone. Okay, I will keep it in English, little bit in Hindi, because we have to cater to everyone. Don't you worry about it. So I have written one small quote for you all. History is not about remembering the past just alone. It's about recognizing the patterns in human choices. And that is what is tested in UPSC examination. That is what differentiates history at the UPSC level and as to what you have studied at the school as well as college level. Okay, so you have to learn about the patterns. It's about continuity and change. Okay, so that is there. Now, first of all, before I even dig in about the importance of history, let me discuss a little bit on the syllabus aspect कि क्या syllabus है, बहुत brief में बताऊंगी, ठीक है। क्या syllabus है, आपके कुछ 3 major subject हैं, 3 से 4 major subject हैं history को लेकर. One is your ancient history, second is medieval, थर्ड इज योर मॉडर्न हिस्ट्री. दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मीन्स, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन और वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन भी थोड़ा सा इंक्लूड होता है. सो दिस इज द ब्रीफ सिलेबस अबाउट हिस्ट्री. थोड़ा डिटेल में इसको हम कोर्स में करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट आर विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट. अब बात करते हैं व्हाई इज दिस सब्जेक्ट सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी, राइट. तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, जो आपका प्रीलिम्स है हर साल 16 से 18 क्वेश्चंस इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री. ट्रेंड्स ऑल्दो चेंज हो रहे हैं, बट देयर इज वन मेजर कोर, दैट इज मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर. 6 से 8 क्वेश्चंस आप इसमें हर साल देखेंगे. ऑल्दो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट वी डोंट हैव टू गो आफ्टर द ट्रेंड. It's the core subject, that is one area. And one subject that is coming again and again in the last 2-3 years, as I have observed, is ancient history. Questions from Indus Valley civilization, Stone Age, locations, then your Mauryan Empire, Buddhism, Jainism, architecture, art, these all encompass from ancient India. और medieval history में भी consistently 2 से 3 questions you would always see. So ये कुछ सवाल हैं. That means about 20%, 15 to 20% of your prelims depends on history. So it's actually one of the big
4 subjects that are there. Now let us also talk about means में कैसे काम आएगा. GS paper 1 में it's one of the most important subjects. About 1/3 of the questions come from history, but not this alone. किसी का history optional है तो again it's a very important subject. Then essay and even ethics. यहाँ पर बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं, but the lessons from we learn from history actually is the core to essay. In fact, essay में भी history से related almost हर साल, barring this year, पिछले 3-4 साल से मैं notice कर रही हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसे का टॉपिक तो जरूर आता है. और जो हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं, whatever we learn in ethics, all these examples that we read are actually stemming from history. Okay, so this is the importance of the subject. Now let us move forward to the second part. Many of you must be thinking कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो मैं आपको एक पहले तो सिंपल सा फंडा दे देती हूँ. एक सब्जेक्ट और एक किताब, बस. उससे ज्यादा नहीं हमको करना है. बाकी सारी किताबें जो हम 6th to 10th NCERT पढ़ते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट बट इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जो बाकी की बुक्स हैं जो हमने फाइनल रिवीजन करनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर हिस्ट्री को रिवाइज कर सकें. मोर सो व्हेन द एग्जाम इज नियर, when say prelims is near, you are able to revise history maybe in 2-3 days. That is very very important. Why? Because we cannot deny the fact that memory is important in this subject. Along with the understanding and clarity, memory is important. तो उसके perspective के लिए हमको one subject one source के से ऊपर नहीं जाना है. For our final revision जो 6th to 10th NCERT है, we can refer them. There is no problem in that. It provides clarity, but that is not the part of our फाइनल रिवीजन कोर्स. सो कौन सी बुक्स हैं जिसको हमने पढ़ना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी NCERTs हैं क्लास 12th की, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. किसी की अगर पकड़ मजबूत है हिस्ट्री को लेकर, अगर उसको लगता है थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है, बेसिक्स थोड़े पता हैं, यू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, एटलीस्ट हैव सम आइडिया अबाउट इट, then you can read this class 12th themes in NCERT part 1, 2 and 3. That's all. Part 1 deals with ancient history, part 2 deals with medieval history and part 3 deals with मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये बच्चे अक्सर रिवाइज करते हैं. अब एक और क्वेश्चन बच्चों के अक्सर मन में होता है कि ओल्ड NCERT आपको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है. देखो, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई थिंक फॉर योर बेसिक्स even the new NCERTs for class 12th suffice. Alternatively, if you want to go one step ahead of these NCERTs, there are certain books that I would recommend to you. Ancient and Medieval India के लिए तमिलनाडु क्लास 11th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड है. Why? Because in the recent time we are seeing the pattern shifting towards the history of South India. क्वेश्चंस आते हैं चोलास के ऊपर, विजयनगर एम्पायर के ऊपर, और तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे और डिटेल से कवर करती है. इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको NCERT के बियॉन्ड और बुक रेफर करनी है तो आप तमिलनाडु की क्लास 11th की टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन. उसके अलावा मॉडर्न इंडिया के बारे में आई थिंक यू ऑल नो, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर is something that you all can refer. There is no problem. And art and culture के लिए नितिन सिंघानिया, but you got to make concise notes. It's too vast and you cannot remember everything. Okay, तो इसको एक बार it's like a one time read and you make notes out of it and it's done and dusted. अब बच्चों के मन में कुछ सवाल भी आ रहे हैं कि RS शर्मा पढ़नी है, सतीश चंद्र पढ़नी है. देखो, मैंने सब किताबें पढ़ी हुई हैं. It's too vast for prelims and means for somebody who has no history optional. I would suggest you stick to the NCERT and the books that I've mentioned. That is it. ओके, सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग. स्टार्टिंग में बिग पिक्चर फॉर्मेशन के लिए आप चाहे NCERT से शुरू करें 6 to 10 डजंट मैटर, बट फाइनल सोर्स में आपका एक गोल हो. 2 से 5 दिन के अंदर आपका प्रीलिम से पहले रिवीजन हो जानी चाहिए. इसलिए वन सब्जेक्ट वन सोर्स, दैट इज इट. क्लियर? सो ये चीज आपको समझनी है. नाउ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट को लेकर. आई वुड नॉट लाई, मुझे भी बहुत चैलेंजेस आए. Even though I'm teaching you, that is why I'll be able to teach you, because I've faced those challenges and I've found solutions to it. Let us see क्या vast challenges हैं, especially with respect to your history for UPSC CSE examination. देखो, आपको हमने अभी बुक्स मैंने डिस्कस तो कर ली हैं कि ठीक है, आप NCERT पढ़ सकते हो क्लास 12th की. उसके साथ अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो तमिलनाडु की क्लास 11 बुक, स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो. बट स्टिल, क्या हम इससे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं?
नहीं होते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस की एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एंशियंट एंड मिडीवल। इवन इन आर्ट एंड कल्चर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार बच्चे इतना थक हार जाते हैं दैट डू वी इवन वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एंशियंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर और नॉट। ये सवाल अक्सर बच्चों को तंग करते हैं कि इतना वास्ट और एम्बिग्यूअस कंटेंट है और हमको ये भी नहीं पता है जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो काफ़ी है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, there is always a solution to every problem you face, it's just that हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। Sure, history could be ambiguous, sure it could be vast, but वो जो guiding light है, that is our PYQs। हर साल PYQs ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जो हम ओवरलुक कर देते हैं। इवन मैनी अ टाइम्स अगर हम किसी से पढ़ रहे हैं वो भी ओवरलुक कर देते हैं। अगर आप आज भी पेपर निकाल के देख लें पिछले 2-3 साल के, इफ यू लुक एट द पेपर्स यू वुड फाइंड समथिंग। What would be those things? There would be always a question on locations. एंशियंट इंडिया से मिडीवल इंडिया से कौन सा ओल्ड पोर्ट था, कहाँ पर क्या फाइंड आउट हुआ, उनकी आर्कियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या हम उसको पढ़ते हैं? नॉट रियली। हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। और तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रोनोलॉजी इज समथिंग जिसके ऊपर यूपीएससी 2-3 साल से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे आते हैं। अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट हाउ मच वी टेक केयर ऑफ दैट, वी डोंट। उसके अलावा किताबों पे क्वेश्चंस आते हैं। दिस वर्क इज रिटन बाय होम, है ना? ये बुक किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, बट डू वी स्टडी देम? नो। टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चंस आते हैं कि ये शब्द है, संस्कृत शब्द दे दिया जाएगा आपको, पाली शब्द दे दिया जाएगा, प्राकृत शब्द दे दिया जाएगा और उसका मतलब पूछ लेते हैं। फॉर दैट मैटर समथिंग एज सिंपल एज बानिया का मतलब उन्होंने पूछा हुआ है, बट वो इतना गोलमोल कर कर पूछते हैं उस सवाल को दैट इफ वी डू नॉट हैव क्लियर नॉलेज कि बानिया क्या है, सराफ क्या है। जस्ट गिविंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई एम होपिंग कि एटलीस्ट इतना आप सबको पता है कॉमन लैंग्वेज में। तो ये सवालों का भी हमको जवाब नहीं आ पाता है बिकॉज वो इतना उसको गोलमोल कर कर पूछ लेते हैं। तो इस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू मैप PYQs एंड वो कुछ एम्बिग्यूटी को अगर आपको ओवरकम करना है तो PYQs के पैटर्न के बेसिस पे आपको वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज समथिंग आई हैड डिकोडेड ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन, एंड even during classes I am going to provide you one pager notes on this. You don't have to worry about it at all, but this is one thing that you got to do even if you're doing self study. Second thing, retention and recall. Like I said, in prelims रिटेंशन रिकॉल की इंपॉर्टेंस तो रहती है, बट फैक्ट्स नेम्स ईयर्स याद नहीं रहते हैं। दिस इज द ट्रुथ। इवन इन माई फर्स्ट प्रीलिम्स आई कैन टेल यू दैट मैंने इतनी दफ़े चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैंने एज इट इज़ बुक में पढ़े थे, बट एग्जाम में जाकर आई गॉट कन्फ्यूज इन 2 ऑप्शंस। बट उसके बाद मुझको समझ में आया कि अगर आप सिर्फ रिटेंशन के लिए फैक्ट्स और नेम्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल नेवर परफॉर्म वेल। You will always get confused between 2 options and you would choose maybe the wrong option. It's always going to be on fate कि आप कौन सी ऑप्शन चूज कर रहे हो। इस केस में you have to add context। जब तक आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, why things happened, क्यों हुई, इससे पहले क्या इवेंट्स हुए, इसके बाद क्यों हुए, कैसे हुआ, क्या उसकी रेपरकशंस थी, जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तब तक भूल जाओ कि आपको फैक्ट्स नेम्स और ईयर्स याद रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम उसको थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। ओके, ईजी कैसे करेंगे? वी कैन यूज टाइमलाइंस, एक लॉजिकल फ्लो में चीज़ें कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विच आई विल बी यूजिंग इन द क्लास, मैप बेस्ड मेमोरी को बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अक्सर हिस्ट्री में देखा जाता है कि हिस्ट्री को क्या देखा जाता है दैट इट्स अ सम टोटल ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, history is the origin of concepts. All concepts that you're reading, say in polity, say in ethics, in any subject for that matter, वो सारे concepts history से शुरू होते हैं। and this is the major challenge why सब कुछ पढ़ने के बाद भी बच्चे मेंस में आंसर नहीं लिख पाते हैं। why? because उनके concepts clear नहीं होते हैं। something as simple as एक बहुत major topic है आपका मेंस में हिस्ट्री से रिलेटेड, नेशनलिज्म। लेकिन हम नेशनलिज्म का सारी कहानी तो पढ़ लेते हैं कि मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, गांधी जी आए, लेकिन क्या हमने कभी भी ये सोचा नेशनलिज्म एग्जैक्टली है क्या? नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में डिफरेंस क्या है?
उसके अलावा क्या कभी आपने सोचा इंपीरियलिज्म क्या है, नियो इंपीरियलिज्म क्या है? जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, सॉवरेनिटी क्या है, सुज़रेनिटी क्या है, क्वेश्चंस को डिकोड ही बहुत करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए कॉन्सेप्ट्स शुड बी स्टडीड। ठीक है जी, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए पहले तो उनका मतलब समझना है, उसका कॉस्ट, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट रिलेशन अलोंग विद द एग्जाम्पल्स। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मीन्स, दैट इज कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन। उसको दूर करना है ताकि आप सवाल समझ पाए कि वो पूछ क्या रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट द चैलेंजेस एंड हाउ यू ओवरकम देम, एंड वी आर गोना डील विद देम इन द क्लासेस एज वेल। चलो, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी पढ़ने की। हमने अभी तक बात करी सिलेबस में, बिल्कुल ब्रीफली मैंने बताया कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की। फिर हमने बताया कि कौन कौन से सोर्सेज हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे। ये सारे सोर्सेज मैं भी अपने नोट्स में बिल्कुल रेफर करके बोलूँगी, बट दिस वुड नॉट बी सफिशेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वास्ट एंड एम्बिगुअस कंटेंट है। तो पी वाई क्यूज को मैप कर कर लॉजिकली उसके लिए वन पेज और नोट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। स्टोरी कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैलेंजेस को मैं ओवरकम करने करूँगी आपके सेशंस में, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री इन द क्लासेस। बट लेट्स से यू वांट टू स्टडी ऑन योर ओन, हाउ वुड यू स्टडी? क्या एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे पढ़ना है ये सोर्सेस को? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, मेनी ऑफ यू वुड बी फर्स्ट टाइमर्स, सम ऑफ यू मस्ट बी इन द प्रोसेस। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए सजेशन रहेगी, जो इस प्रोसेस में ऑलरेडी हैं वो ये चीज़ महसूस कर पाएंगे जो मैं आपको बोलूँगी, दैट इज़ द रोल ऑफ बिग पिक्चर फॉर्मेशन। ये चीज़ अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। जो आपकी पहली रीडिंग होती है, आप ओवरऑल पिक्चर देखते हो। आप ये देखते हो कि ये क्या इवेंट था, क्यों हुआ, बस ओवरऑल उसका एनालिसिस देखते हो। लेकिन अक्सर बच्चे क्या, एक इशू हम क्या देखते हैं, दैट वी फोकस ऑन डिटेल्स इन द फर्स्ट रीडिंग इन इटसेल्फ। तो आप जब डिटेल में फर्स्ट रीडिंग में पढ़ोगे, कंप्लीटली एक एक डिटेल आप अच्छे से पढ़ोगे फर्स्ट रीडिंग में, यकीनन आपको मे बी मॉडर्न हिस्ट्री करने में ही आपको 20-25 दिन लग जाएंगे। जब 20-25 दिन लगेंगे तो आप तीसरे चौथे दिन पे आओगे, ऑब्वियसली आपको पहले 2-3 दिन का बिल्कुल ही भूल जाएगा। इसीलिए हैविंग अ समरी अप्रोच, starting me to know what is happening, and later on it is important to know कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ओवरऑल उसका एक अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ योर बिग पिक्चर फॉर्मेशन। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड स्टार्ट विद दीज वेब सीरीज एंड मूवीज़। बहुत सारी मूवीज़ हैं ऑन हिस्ट्री जिससे आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगेगा। बहुत सारी वेब सीरीज हैं, और ये वेब सीरीज वगैरह मैं पिन कर दूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट लेटिंग यू नो, यू शुड स्टार्ट विथ समथिंग लाइट। यू कैन ऑल्सो वॉच पॉडकास्ट ऑन हिस्ट्री, यू कैन ऑल्सो वॉच एनसीईआरटीज की वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको 6 to 10 एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़नी है, आप देख सकते हो, आप समझो सार लो की हिस्ट्री है क्या, क्यों पढ़नी है। दैट इज द फर्स्ट रीडिंग, दैट इज हाउ इट शुड गो। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है कि एक एक शब्द कर ले, क्योंकि फिर आप बिग पिक्चर कहीं ना कहीं खो दोगे। सेकेंड रीडिंग तक आते आते यू हैव टू फोकस ऑन पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज आर योर एंकर्स। किस दिशा में जाना है, क्या इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने आपके साथ बहुत सारी लर्निंग्स डिस्कस करी कि वास्ट और एम्बिगुअस है, तो एम्बिग्विटी को हटाने के लिए पीवाईक्यूज को मैप करना जरूरी है। तो जब आपकी सेकेंड रीडिंग है, तो आप उसको पढ़ने से पहले प्लीज हैव अ लुक एट टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ऑफ एटलीस्ट 10 years, एंड लास्ट 3-4 years के ट्रेंड्स तो आपको घुट के भी जाना चाहिए। इट्स सो इंपॉर्टेंट, यू शुड बी डूइंग इट। सो फोकस ऑन डिटेल्स। कैसे डिटेल पे फोकस करेंगे, कौन सी डिटेल पे फोकस करना है, वो एंकर कौन देगा, पीवाईक्यूज। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, one subject, one source, that's it. But that also means that you excel each and every line that you're reading. ठीक है जी, सो सेकेंड रीडिंग में फोकस ऑन डिटेल्स एंड इंटरकनेक्शंस। जब आपकी बिग पिक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी ना, तो वो कनेक्शंस अपने आप बन जाएंगे। थर्ड रीडिंग की बात करें तो लाइक आई सेड, रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, रिवाइज मेमोरी, क्विक रिकॉल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मे बी यू वुड वॉन्ट टू हैव 1 page नोट्स।
फाइन। ये जो पहले फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग है, आपको मैं ये भी बता दूं कि अक्सर बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि कितने टाइम में ये हो जाना चाहिए अगर आप खुद से पढ़ रहे हो। आई वुड से दैट एक बिग पिक्चर फॉर्मेशन को अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो और सेकंड रीडिंग को कर रहे हो, कोशिश करो कि आप 30 दिन में अपना कंप्लीट कर लो एंड थर्ड रीडिंग एक हफ्ते में हो सकती है। सो दिस इज द टाइमलाइन दैट यू कैन आइडियली फॉलो। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप स्लो रीडर हो, अगर आप थोड़े से स्लो रीडर हो, तो इट्स ओके, आप थोड़ा सा टाइमलाइन ब्रीच भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वालिटी स्टडीज इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन रैट रेस। Fine. Now, second stage for prelims is having a practice plan. Trust me on this, you read it 10 times. You read it 10 times, you read it 100 times until or unless you are not solving MCQs. Let me tell you that solving one MCQ is worthy of 10 minutes of revision for you. You would know what are your faults, what are the issues that you're facing. So, alongside your studying, please solve sectional MCQs. आप PYQs तो कर ही रहे हो, बट सेक्शनल MCQs को भी आप टेस्ट ले सकते हो पर सब टॉपिक। मान लो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली है, एंशियंट हिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं, आपने 5 पढ़ लिए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग सेक्शनल टेस्ट अलोंग साइड टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। और सेक्शनल टेस्ट आपको ये बताएंगे कि आपको कितना आता है, हाउ फार यू हैव कम एंड हाउ फार you have to go, what kind of revisions you have to take. Fine. And after you are done with the subject, please at least attempt one full length test, because इससे आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी। यहाँ पे तो मेमोरी टेस्ट हो जाएगी, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी। ठीक है जी, सो दैट इज देयर। फाइन। एंड कीप ट्रैक, रेगुलरली रिवाइज PYQs एंड स्टे अलाइंड। इट इज ओके आप रोज रोज रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज फाइन। बट देन आपका एक प्रॉपर रिविजन प्लान हो, लाइक आई ऑलवेज ऑलरेडी गिवन यू, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एक टाइम्ड फॉर्मेट में यू वुड बी रीडिंग देम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मीन्स पार्ट ऑफ इट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मीन्स के लिए हमको क्या करना है, फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट। अगर सिर्फ आप फैक्ट्स और इवेंट्स के ऊपर फोकस कर पाओगे, मीन्स के आंसर नहीं लिखे जाएंगे। क्या हमको मीन्स के लिए बहुत एक्सेसिव नोट्स चाहिए? आंसर इज नो। मीन्स में सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, अबाउट 1/3 ऑफ GS पेपर 1, जिसके लिए हमको कोर हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए। क्या हमको उसके लिए ऑप्शनल लाइक नोट्स चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। बट क्या हम उसको सिर्फ फैक्ट्स को रट कर लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट अगेन। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, इफ यू डू नॉट सी द सब्जेक्ट एज कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, लेट मी टेल यू, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी, economy, culture, and continuity and changes. UPSC tests your knowledge about that. So आपको thematically पढ़ना होता है मीन्स में। Of course, this is something that I am going to follow in the class, but just letting you know कैसे चीज़ें बढ़ी। अगर मैं आपको फॉर दैट मैटर एग्जाम्पल दूं, मान लो आप ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो अक्सर पूछ लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड में क्या सोसाइटी में चेंजेस आए, वर्ना सिस्टम में क्या चेंजेस आए, पोजीशन ऑफ वुमेन में क्या चेंजेस आए, क्या ऐसी चीजें थी जो आप देखते हो। तो अगर आप वो चेंजेस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हो, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। देन अगेन हम सोचते हैं UPSC आस्क वट एवर इट वॉन्ट्स टू आस्क, बट इफ यू एक्चुअली फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, इफ यू अंडरस्टैंड कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। ये टॉपिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आई एम एज्यूमिंग सबको थोड़ा बहुत पता होगा। अगर आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देखो कि जो हमारी इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ऑल्दो दिस एंशियंट मिडीवल मॉडर्न इज एक्चुअली अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, वी डोंट स्टडी इट लाइक दैट, बट जस्ट टेकिंग दिस एग्जाम्पल, अगर हमने छोटी सी मान लो मेंस में क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया, ब्रिटिश ने हमको कॉलोनाइज कैसे करा। हमने प्रीलिम्स में या फिर फॉर दैट मैटर जब हम खुद भी पढ़ते हैं, तो हम फोकस करते हैं हर एक इवेंट पे कि ट्रेडिंग कंपनी आई, उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने ये किया वो किया। बट आप कभी भी जब तक कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, लिंकेजेस के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो आप उस छोटी सी गागर में सागर कैसे भरोगे। व्हाट आई मीन इज दैट यू विल हैव ओनली 2 to 3 पेजेस टू राइट एंड यू हैव टू मच ऑफ कंटेंट। दैट इज द प्रॉब्लम विद हिस्ट्री इन मीन्स, कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं बट कॉन्टेक्स्ट और इंटरलिंकेजेस नहीं पता होती हैं। बट जब आप इसको कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज में पढ़ते हो, कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हो, तो आंसर करना बहुत आसान होता है। हाउ वुड यू आंसर सच अ क्वेश्चन? ऑफ कोर्स दे केम as economic,
ट्रेडर्स है ना, ये तो सबको पता है कि जो ब्रिटिश हैं ट्रेडर्स आए थे, वो राज करने नहीं आए थे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट्स के लिए आए थे। लेकिन उन प्रॉफिट्स के लिए उन्होंने कई जंगें लड़ी, उनके लिए कई पॉलिसीज लेकर आए। पॉलिटिकल लेवल पर उन्होंने देखा कि हमारी जो कंट्री है, अगर इसको अगर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना है तो पॉलिटिकल लेवल पर भी हमको अनेक्स करना पड़ेगा। उन्होंने हमारी वीकनेसेस देखी, तब जाकर उनकी बहुत सारी पॉलिसीज आई, जिसको आप सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या कोई भी कंट्री, बाहर की पावर, क्या हमको सिर्फ उस दो लेवल पर, क्या हमको हमारे ऊपर राज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस दे डू नॉट एक्चुअली कैप्चर आवर हार्ट्स। जब तक कोई इंसान आपको ऐसा महसूस ना कराए दैट यू आर अ मीडियोकर पर्सन, दैट यू आर समबडी हु नीड्स टू बी रूल्ड, तब तक कोई भी फॉरेन पावर फुलफुली आपके ऊपर राज नहीं कर सकता है। दैट इज वाई दे केम अप विद द आइडिया ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जिसकी लेगेसी अभी भी है English, right? They imposed Western sciences, they imposed Christianity. Even Swami Vivekananda ne bola that the first thing you learn at a British school is that your father is a fool, your grandfather is a lunatic, and your books, your Vedas are a mass of lies. That means they focus to defeat our self-confidence. ये clarity, ये connect, ये कभी भी नहीं आता है जब हम सिर्फ facts की तरह पढ़ते हैं। ये कहानी, ये समझ तब आती है जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरलिंकेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। दैट इज, डोंट जस्ट लर्न व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो व्हाई एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड future developments, something that we are going to take forward in the class. Secondly, analyze PYQs to understand the shifts in questioning. आप यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट करो, योर एंकर शुड बी PYQs। क्यों? क्योंकि वो एम्बिग्विटी को खत्म करता है एंड आपको एक दिशा देता है कि कम से कम इस दिशा में आप चल सकते हो, और रास्ते में चलते चलते कुछ ना कुछ लर्निंग्स आपको जरूर मिलेंगी, सब कुछ एक दिन में समझ में नहीं आएगा। एंड थर्ड, analytical depth, something I had already discussed with you: political, social, economic, cultural dimensions. Dimensional approach is important in means. Fine everyone, so this is how you study prelims के लिए। आप 3 phase revisions होती हैं, 3 phase revision में आप पढ़ाई करें, सब कुछ एक साथ रटने की कोशिश मत करें। जब तक आपकी बिग पिक्चर फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मेमोरी के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू। On the other hand, for mains, please focus on analytical depth. मेंस में रटने की कोई बात ही नहीं होती है। अनलाइक व्हाट स्टूडेंट्स थिंक कि ये भी याद करना है, वो भी याद करना है, यूपीएससी डज नॉट टेस्ट दैट। दैट इज वाई यू वुड ऑलवेज सी नाउ आफ्टर दिस सेशन, आई वुड वांट कि आप एक बार जरा सा 2025 का पेपर निकाल के देख लेना। वो फैक्ट्स पूछ ही नहीं रहे। 2024 का पेपर निकाल के देख लेना, वो आपका यही एनालिसिस चेक करते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज देयर। So now let me also talk about supplementary areas to strengthen. This is my analysis of PYQ, something that if you are studying on your own, you must do it. That is locations. हमारी सारी knowledge about ancient India is based on archaeology. और क्या चीज कहाँ पर हमको मिली, उसके बेसिस पे हर साल एक क्वेश्चन आता है। कौन सी कैपिटल किसकी थी, हरप्पा में क्या मिला, लोथल, धोलावीरा, these are just some examples, but every year there's a question on location, but do we look at it? Not at all. Chronology I've already informed, दो आई नो इट कुड बी डिफिकल्ट, बट एक थीमेटिक फॉर्मेट में अगर आप क्रोनोलॉजी करोगे, इट्स वर्दी वन क्वेश्चन। एंड 100 में से एक सवाल उस एरिया में से अगर आपको पता हो कि आना ही आना है, इट्स गोना कम एट ऑल कॉस्ट, इट्स अ बिग डील। टर्मिनोलॉजीज के ऊपर फोकस करो, वर्ड मीनिंग्स के ऊपर फोकस करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दिस ईयर देयर वाज दिस क्वेश्चन, बट आई वुड नॉट टेल यू व्हाट क्वेश्चन बिकॉज आई वांट यू टू सी एंड रिफ्लेक्ट एज टू व्हाट आई हैड सेड। ठीक है, कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सी पोयम किसने लिखी, कौन सा ऑथर था, कौन सा टेक्स्ट था, कौन सा रूलर था, कौन कंटेम्प्रेरीज थे, इसके ऊपर अक्सर हर साल सवाल आते हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। एंड देन contextual understanding, like I said कि prelims is not just about facts. Questions बहुत बार ऐसे आए हुए हैं जहां पर आपको on the basis of whatever you know,
Whatever you know, you have to arrive logically at an answer. कभी भी एक क्लास में या कभी भी एक बुक से आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट क्या हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं जिससे हमने शायद कुछ ना भी पढ़ा हो? क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं? आंसर इज यस. Their solving skill matters a lot. How to arrive at an answer of which you have no clue about, but you have knowledge about things related to it. फाइन. सो वो चीज एक सॉल्विंग स्किल का हिस्सा होता है. दैट इज समथिंग अगेन वी आर गोना टॉक अबाउट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट माय टीचिंग अप्रोच. जो मैंने आपको बताया ये सब मैं क्लास में फॉलो करने वाली हूँ. ठीक है जी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी is the base of history which most students ignore. ये चीज तो I'm gonna make sure that it is in your blood. कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ये बहुत जरूरी है. बोरिंग तो बिल्कुल नहीं रहेगा. दूसरी चीज मेमोरी रिटेंशन. आप कितना भी इस चीज को कोई भी कह ले कि मेमोरी का रोल नहीं है या है, इट इज ऑलवेज देयर. मेमोरी जरूरी है, बट मेमोराइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों को कंसाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. फैक्चुअल टेबल्स, लॉजिकल फ्लो ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके लिए एनालॉजिकल स्टोरीज भी. क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उसका कारण था. ये दो तीन चीजें. एक फिट्स ऑफ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नेवर द वे फॉर मेमोरी. यू हैव टू मिक्स एंड मैच मल्टीपल थिंग्स. कहीं पे आपको लॉजिकल फ्लो में चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, कहीं पे आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे, कहीं पे आपको एनालॉजिकल स्टोरी से याद करना पड़ेगा, लिंकेजेस करनी पड़ेंगी फॉर लॉन्ग टर्म रिकॉल. ठीक है. उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नो आई डोंट प्रॉमिस यू टू टेल ईच एंड एवरी question that is going to come in prelims. And trust me, anybody who tells you कि history का हर question decode किया जा सकता है is actually lying to you. As a student, I can tell you, but one thing I can tell you for sure, that I will enable you how to solve the questions even you have not read it. At least with good practice, good revision, आप link कर सकते हो और solve कर सकते हो. Perhaps that was the reason why I always got most of my history questions correct. Why? Because I could apply knowledge to arrive at an answer that you might not know. ठीक है जी. So this is there. So that's it. I hope the session was helpful. Till then, keep it simple. Build your basics. Never ignore your basics. That is the first thing. Never ever, never ignore PYQs and never ignore your practice. 3 things and you're sorted. For all the stages, keep it very simple. Fine. And no FOMO. Keep it very, very simple. Trust yourself. Book list I've shared in the session. You can watch the recording. Okay. Good luck. Good day. I will see you all again, hopefully in the classes. Bye-bye.